5 laws of gold. So the same book talks about 5 laws of gold also. What are the 5 laws of gold? We'll see. There are 5 laws of gold which help you to again, learn money management. These may not be a direct repetition of these 7 laws that we read, but they are in a different flavor. They are explained. Okay. First law of gold. I will just read it. Gold cometh gladly. This is Shakespearean language, so don't mind. Try to understand. Gold cometh gladly and in increasing quantity to any man who will put by not less than 1/10 of his earnings to create an estate for his future and that of his family. आई थिंक दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी रेड. इसको हम ब्रेक कर देते हैं. देखो, तो एसेंशियली इसका वन लाइन मीनिंग तो वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि आपके 1/10 को आप सेव करो, इन्वेस्ट करो, उससे एस्टेट बिल्ड करो आगे का. ठीक है. बट इन जनरल ये क्या कह रहे हैं कि उसके पास पैसा खुशी से आता है एंड ज्यादा से ज्यादा आता है टू दैट पर्सन हु विल पुट इन 1/10 से लेस नहीं, मिनिमम 1/10. सो 1/10 इज नॉट मैक्सिमम नंबर, 1/10 इज अ मिनिमम नंबर. तो कोई बोलेगा कि नहीं फिर मेरे को 100 रुपए इनकम है तो मैं 5 रुपए बचाऊंगा तो भी चलेगा क्या? तो दैट बिकम्स 5%. 5% इज लेस. तो यहाँ पे 1/10 मिनिमम बोला गया है. यू कैन डू मोर देन दैट. If you think you can do 20% of your income in investment and saving and giving to every month, you can follow that absolutely. But 1/10 is a minimum. ठीक है. तो 1/10 आपको सेविंग्स में रखना है. वही पैटर्न पर्स वाला रूल है, बट इट इज मोर एक्सपैंडेड दैट यू हैव टू यूज इट टू बिल्ड एन एस्टेट. Estate doesn't only means real estate here. Estate may mean anything that has a future income for you. It may mean real estate also. It may mean gold or it may mean profitable investments for your future and of your family. तो उनके पास गोल्ड आता रहेगा और बढ़ के आता रहेगा जो अपनी 1/10 को काम पे लगाएंगे, अपनी 1/10 इनकम को काम पे लगाएंगे. ठीक है. This is the first law of gold. Second law of gold. Second law of gold is gold laboreth diligently and contentedly for the wise owner who finds for it profitable employment, multiplying even as the flocks of the field. Find efficient ways to make your money work for you. तो देखो, एम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट हम जॉब को बोलते हैं. काम काम मिलता है, किसी को नौकरी मिलती है तो आई एम एम्प्लॉयड बोलते हैं ना, एम्प्लॉई बोलते हैं, आई एम एम्प्लॉयड नाउ. तो आपका काम जो है वो एम्प्लॉयमेंट है. इसी तरह से आपके पैसे के लिए, आपके गोल्ड के लिए भी यू हैव टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट. So it shouldn't just sit and burn in the purse. It shouldn't just rust in the purse or in your, let's say, treasure chest. So इसमें बताया है कि gold labors diligently. तो आपका जो मनी है वो भी आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करता है, provided you find it a profitable environment. आप उनको सही जगह पे लगाओ, प्रॉफिटेबल नौकरी में लगाओ, तो वो मनी आपके लिए बहुत मेहनत करता है. एंड इट जस्ट मल्टीप्लाइज लाइक फ्लॉक्स इन द फील्ड. ये पुराने जमाने का एग्जांपल दिया है फार्मर्स का, वेयर शीप्स एंड गोट्स विल मल्टीप्लाई, or cows or even farm animals will multiply for a farmer and then he will become rich. Similarly, your money should also multiply. How will it multiply? It will assist you to multiply and work hard for you, provided you give it a profitable employment. सही जगह पे उसको काम पे लगाओ, करेक्ट स्कीम में लगाओ, तो वो गोल्ड आपके लिए काम करेगा. जितना गोल्ड था उससे बढ़ जाएगा एंड यू आर जस्ट डूइंग योर ओन स्वीट थिंग. आप अपना एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो और गोल्ड अपना एम्प्लॉयमेंट कर रहा है. एंड व्हेन यू कम बैक टू इट अ कपल ईयर्स, यू विल सी योर गोल्ड हैज बीन मल्टीप्लाइड एंड यू डिड नॉट डू a thing to do it, provided you just invested it in the right place. Okay, let's see the third law of gold. After we read all the laws, we will also be able to connect the dots and understand and do a quick summary on that. Third law of gold. Gold clingeth to the protection of the cautious owner who invests it under the advice of men wise in its handling. It means gold clings to the owner who invests it with the advice of wise men. Wise men means not wise in general, wise who are wise in handling money. That means profitable people. That means correct wealthy wealth managers, right relationship managers, or the people who can really advise you with the right guidance. Not necessarily they may be wise otherwise, they may or may not be, but they are wise in handling money, or to be more specific, wise in handling your money. ठीक है. तो तीसरा और लॉ बता रहा है कि वाइज लोगों की एडवाइस से ही जाओ, किसी का भी एडवाइस मत सुनो, है ना. आज तक पे मत देखो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सीएनबीसी न्यूज पे मत देखो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ना, या एसएमएस टिप्स मत फॉलो करो. राइट, फॉलो द एडवाइस ऑफ वाइज पीपल ओनली, बिकॉज इट क्लिंग्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन. उन लोगों के यहाँ से पैसा स्लिप नहीं होता जल्दी जो वाइज एडवाइस से काम करते हैं. ओके, सो दैट्स द थर्ड लॉ. वेरी सिंपल. सो जस्ट द लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स बट द मीनिंग इज वेरी सिंपल. ओके, लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ. Fourth law of gold. I will just read it first. Gold slippeth away. देखो, अभी cling था, अभी slippeth हो गया अभी. तो I just gave you a hint. It's उल्टा हो रहा है इसका. The fourth law of gold is gold slippeth away from the man who invests it in businesses or purposes with which he is not familiar, or which are not approved by those skilled in its
तो देखो किन लोगों को चिपकता है गोल्ड, हमने देखा क्लिंगेट पीछे, जो वाइज एडवाइस लेके ही काम करते हैं, उनके पास रहता है पैसा, टिका रहता है। और किन लोगों के हाथ से भाग जाता है, स्लिप हो जाता है, जो अननोन, अनप्रॉफिटेबल, रिस्की, या फिर जिसमें नॉलेज नहीं है खास करके। उन बिजनेसेस में जब आप लगाते हो, उन स्कीम्स में लगाते हो जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, या उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो जिसमें आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, आपने कुछ रिसर्च नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपको फिर वो लॉस होता है, बिकॉज यू आर बीइंग केयरलेस विद द मनी, मनी बिकम्स केयरलेस विद यू, इट स्लिप्स अवे। ठीक है, सो इट स्लिप्स अवे फ्रॉम पीपल, slips away from person who invests gold or money into purposes through which they are not familiar। तो आप फेमिलियर नहीं हो उस स्कीम्स में मत लगाओ पैसा, उस बिजनेसेस में मत इन्वेस्ट करो जिसमें आपको नॉलेज ही नहीं है। कोई भी अगर देखो उस बिजनेस में आपको कोई उल्लू बनाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा ना, उस बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपको समझ नहीं आएगा। बिजनेस रूल्स आपको समझ में आते हैं पहले, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड, फिर किस में लगा रहे हो, वो बिजनेस समझ में आता है क्या, उस बिजनेस का डोमेन अलग होता है। तो हर डोमेन अलग है, हर डोमेन का अलग है। कैपिटल मार्केट्स अलग तरीके से चलते हैं, है ना, इक्विटी मार्केट अलग तरीके से चलते हैं। तो उसका नॉलेज है तो ही उसमें आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इफ यू आर नॉट फेमिलियर, डोंट डू इट, सिंपल। फिफ्थ लॉ ऑफ गोल्ड, द फाइनल लॉ। फिफ्थ लॉ ऑफ गोल्ड सेज गोल्ड फ्लीज द मैन who would force it to impossible earnings, or who followed the alluring advice of tricksters and schemers, or who trusted to his own inexperience and romantic desires in investment। तो ये इसमें क्या बता रहे हैं कि गोल्ड विल गो अवे फ्रॉम अ मैन जो इम्पॉसिबल अर्निंग क्रिएट करना चाहोगे उसमें से। देखो कोई बोलेगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और इसको मेरे को 1 करोड़ बनाना है 1 महीने में, तो देन दिस इज एन इम्पॉसिबल अर्निंग टारगेट। तो अगर आप इम्पॉसिबल अर्निंग टारगेट लेके चलोगे देन यू आर बाउंड टू गेट फेल, इट विल फ्ली द जो है गोल्ड वो भी चला जाएगा, जो मनी है वो भी चला जाएगा। क्योंकि फिर क्या करोगे ना, 1 लाख का 1 करोड़ कैसे करोगे 1 महीने में, लॉटरी में लगाओगे फिर उसको गैम्बलिंग में लगाओगे, किसी ऐसी स्कीम में लगाओगे जो बंदा बोलेगा कि 1 लाख का 1 करोड़ करके दूंगा, उसकी बातों में आओगे। तो इम्पॉसिबल टारगेट लेके चलो ही मत। आपके पास 1 लाख रुपए है और कोई आके आपको बोलता है कि चलो मैं 1 करोड़ बना दूंगा 1 महीने में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ट्रिक्स्टर है ये ऑलरेडी, ये स्कीमर है, इसकी बातों में तो नहीं आना ही नहीं है। क्योंकि ये डिफाई कर रहा है बाकी सारे रूल्स को, ये बैंक को भी डिफाई कर रहा है, स्टॉक मार्केट को भी डिफाई कर रहा है। तो इट इज अ गेट रिच क्विक स्कीम ना, कोई बी ग्रेड बिजनेस होगा या ट्रिक्स्टर होगा या एल्यूरिंग स्कीम होगा या लॉटरी होगा, गैम्बलिंग होगा, कोई गलत तरीका होगा उसमें। ठीक है, और उसमें गलत तरीका है तो फिर पता है आपको, देन देयर आर अदर रिस्क्स इन्वॉल्व, देन यू आर बाउंड टू इवन लूज योर ओरिजिनल ट्रेजर ऑल्सो। ठीक है, तो इम्पॉसिबल अर्निंग्स एक्सपेक्ट मत करो, पहला पॉइंट। दूसरा, एल्योरिंग ट्रिक्स्टर्स और स्कीमर्स की बातों में मत आओ, जो आए दिन मैसेज करेंगे आपको कि गेट रिच क्विक, उनकी बातों में बताओ। 95% स्पैम चलता है मनी के केस में, सो बी अवेयर। इवन यूट्यूब, इवन व्हाट्सएप, इवन एसएमएस, दुनिया भर के इसमें आते रहते हैं स्कीम्स। तो सभी चीजों पे मत रिलाई करो, तुम्हारे ट्रस्टेड लोगों से बात करो, रिलेशनशिप बैंकर से बात करो, तुम्हारे बैंक मैनेजर से बात करो, और उनको बोलो कि मैं ये लॉस नहीं करना चाहता, मुझे कोई सॉलिड सेफ रिस्क, लेस रिस्क और मीडियम रिस्क स्कीम बताओ, दे विल टेल यू। ट्रस्ट ऑन द पीपल हु आर नॉट स्कीमर्स, यू नो फॉर श्योर। नए लोगों की बातों में मत आओ, क्योंकि नए लोगों को आप जानते ही नहीं है। तो जिन पे आप पहले से बात करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों से बात करो, रादर देन बिलीविंग ऑन स्ट्रेंजर्स, जो आपको कल ही एक फोन कॉल आएगा टेलीकॉलर कि सर ये स्कीम आई है, तो ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, स्कीम के बारे में रिसर्च करो, ट्रस्टेड लोगों से पूछो। ठीक है, दैट इज सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इन दिस इज डोंट गो विद द रोमांटिक डिजायर्स इन इन्वेस्टमेंट। तो रोमांटिक डिजायर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि चलो पेंटिंग का फ्यूचर मुझे दिख रहा है, मुझे पेंटिंग्स पसंद है, तो मैं पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करता हूँ। रोमांटिक डिजायर्स मतलब आपके पैशन, आपके क्रेविंग, आपके इंटरेस्ट को लेकर मत जाओ सिर्फ। ओके, सो दीज आर 5 essential decoded simple English laws of gold. Let's read another quote here. Beautiful. In the strength of thine own desires is a magic power. Guide this power with thy knowledge of the 5 laws of gold, and thou shalt share the treasures of Babylon. तो ये another beautiful quote from the same book. ठीक है, तो ये कोड क्या बता रही है, आई विल सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। इसमें बताया कि आपके को मैजिक पावर दी जा रही है ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स के थ्रू, और आपके अंदर जो डिजायर है रिच बनने की या अपने मनी को मेंटेन करने की अच्छे से, वो डिजायर और ये नॉलेज जो आपको दी जा रही है इसमें मैजिक पावर, ये कंबाइन करके यू कैन शेयर द ट्रेजर्स ऑफ बेबीलोन। तो बेबीलोन जैसे इट रिटेन्ड इट्स रिचेस फॉर सेंचुरीज, तो उसी तरह से आप भी अपनी रिचेस को रिटेन कर सकेंगे, आप भी अपने रिचेस को बढ़ा सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं। यू विल शेयर द ट्रेजर्स ऑफ बेबीलोन इफ यू कंबाइन योर डिजायर, हार्टफेल्ट डिजायर, to grow and combine this power with the knowledge of 5 laws of gold and 7 cures of clean thoughts that we learned. Okay. So with this, I want to thank you